Hello students, very good morning to all of you. Once again you are welcome here in this video. Today we are going to read the last part of this chapter. What is democracy and why democracy? Here we have to read point 1.4, that is broader meaning of democracy. Here you have to also see a very famous cartoon that is commented and celebrated by R.K. Lakshman. You can see here how in a democracy everything is responsible for the for the trouble of a country, how a democratic country, its people, its leaders suffers. You see here in this figure, these are the leaders. You can understand here one by one the leaders' speaks are here. Here you can see unity, democracy, secularism, equality, in industrial growth, economic progress, trade, foreign collaboration, export increase. These all are the things, students, that is related to democracy. So now I'm going to start the broader meaning of democracy. You see here. Here we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. Students, as we have read in the last chapters, in the last points, that democracy is a form of government. And when we define democracy, it identifies a clear set of minimal features that democracy must have. In a democratic country, the common form is our representative, because we elect our representative and our representative choose their leader, and after that there is a formation of government. You can see here, you have already read about this in the previous classes. In the countries that we call democracy, all the people do not rule. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. और जो मेजॉरिटी होता है इस उनको सारे डिसीजन लोगों के बिहाफ में, लोगों की नेतृत्व में लेने की पूरी उनको अलाउ किया जाता है। मेजॉरिटी को इस तरह का पावर प्राप्त रहता है। और मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी द मेजॉरिटी, द मेजर लीडर्स, द गवर्नमेंट, they rule in their country, they take their decisions only through their elected representatives, the representative that is elected by the people in their particular areas. This becomes necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Means here too we can say that in a modern democracy there is a large number of people who is physically impossible for them. जो लोग physically impossible हैं एक साथ बैठने के लिए, इसलिए उन physically एक साथ हम सबको नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनाने का प्रावधान रखा गया है कि एक क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, क्योंकि सारे लोगों को एक साथ बैठाना, 1.5 अरब लोगों को एक साथ बैठाना है बहुत भी डिफ़िकल्ट मैटर है। इसलिए एक एक एरिया से, एक एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने का प्रावधान किया गया है, जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को जाकर वहाँ पे उठा सके। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions.
This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracy. और फिर इस तरह के इम्पोर्टेंस को देख करके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी आवाज़ रहते हैं, हमारी आवाज़ को जा करके उठाते हैं, और इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही डेमोक्रेसी जो है सुपीरियर माना जाता है नॉन डेमोक्रेसी के बदले में। It allows us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. You see here, we are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father. I don't like teachers who do not allow students to speak and ask in a class. I would like to have teachers with democratic temperament. My leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम जो डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, संस्था के लिए करते हैं, जो कि दूसरे गवर्नमेंट की अपेक्षा एक डिफरेंट मीनिंग पैदा करता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी में लोगों को विपक्षी और प्रतिपक्ष और लीडिंग पार्टी दोनों को एक साथ बैठने का अवसर मिलता है, एक साथ अपनी बातों को उठाने का, बातों को समझने का उनको अवसर मिलता है। ये डेमोक्रेसी होता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल होता है। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision, और इस तरह से एक साथ बैठ करके एक मुद्दे को उठाया जाता है, उस मुद्दे पर जो भी सबका राय बनता है, मसौदा बनता है, उसके आधार पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजंस को टेकिंग किया जाता है। A democratic decision involves consultation with the consent of all those who are affected by that decision. और इसमें ऐसे भी डिसीजन लिए जाते हैं जो उस डिसीजन से कौन प्रभावित है, कौन नहीं प्रभावित है, इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे नोट किया जाता है कि कौन उससे प्रभावित हो रहा है, किससे उसका अहित हो रहा है, किससे उसका अहित अगर हो रहा है तो उसको किस तरह की फैसिलिटीज़ दिया जाए, उसमें किन चीज़ों का, किन पॉइंट्स का परिवर्तन किया जाए। ये सारी चीज़ जो है एक रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव के मीटिंग में वहाँ बैठकर ऐसे फीलिंग्स लोगों के मन में आते हैं, विचारधाराएं वहाँ पे ऐसे आते हैं। Those who are not powerful have the same way in the taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है एक या गवर्नमेंट है या एक फैमिली मेम्बर है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह अप्लाई करता है, और यहाँ पर ऐसे सिद्धांत बने हैं जो सिद्धांत हमें जीवन में हमारे चारों तरफ के हमारे जो कार्य रेखा है उस कार्य रेखा को समन्वित करने का कार्य करते हैं। जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के माध्यम से, उस रिप्रेजेंटेटिव के मीटिंग के माध्यम से पूरे देश की रूपरेखा तैयार होता है, पूरी प्रस्तावना तैयार होती है, उस प्रस्तावना पे सबकी राय मसौदा को लिया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी पॉइंट्स चेंजिंग करना है उसको किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग देश को आगे बढ़ाने के लिए एक रूल रेगुलेशंस, एक मसौदा की तैयारी होती है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that our democracy must aim to become. कभी कभी हम कुछ ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है दूसरे गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करके नहीं है जो उसका यानी जो गवर्नमेंट अस्तित्व में ना हो, लेकिन बल्कि ऐसे गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट अस्तित्व में है, मेजॉरिटी में है, वो अपने आइडियल स्टैंडर्ड को फॉलो करे, उसका आदर्श क्या है, उसका आदर्श मानक क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को फॉलो करके चले, वो जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. Very important line students, you have to remember this point कि true democracy वहीं पर होगा जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सोने भूखे न जाए। भूखे अगर कोई व्यक्ति सोने जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making। और ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी एक वैल्यू है कि डेमोक्रेसी में इक्वल रोल होता है, डिसीजन जो भी होता है उसमें इक्वल रोल होता है, सबका बराबर का उसमें रोल होता है। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट।
और इसके लिए हमें जो है इक्वल राइट्स होता है वोटिंग करने के लिए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, और प्रत्येक नागरिक को जो है इक्वल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इक्वल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और लॉट ऑफ कमिटमेंट जो कि डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इस सब की ज़रूरत होती है। ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी पहचान है स्टूडेंट्स। इफ़ यू टेक दीज आइडियल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर हम ऐसे आइडियल्स को अगर सीरियसली लेके चलते हैं तो फिर देखें तो इस संसार में कोई भी कंट्री में वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी, कहीं भी लोकतंत्र नहीं मिलेगा आपको। एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंडर्स ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, it enables us to judge an existing democracy and identify its weakness, and after the value of democracy we have power, we have capacity to judge the existing of democracy। डेमोक्रेसी के अस्तित्व को जानने का हमें वैल्यू मिलता है, इसकी वीकनेस क्या है उसको पहचानने का हमें वैल्यू मिलता है। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy। और यही सारे स्टूडेंट्स जो हैं फैक्ट हैं, इन्हीं फैक्ट के बेस पर आप मिनिमम डेमोक्रेसी क्या होती है, गुड डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बीच आप पहचान कर सकते हैं, उसके वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। ये उसी के ऊपर निकाला जाता है, उसी का निकालने का प्रोसेस होता है। In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमें डेमोक्रेसी के एक्सपांसन के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी का फोकस हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो कुछ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं डेमोक्रेसी का, वो एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे डेमोक्रेसी का वैल्यू जो है, डेमोक्रेसी का वैल्यू इट्स मीन्स टू हेल्प द पीपल टू सिक्योर, टू प्रोवाइड देम security, health, education, shelter, everything. This is the task of ruling party in a democratic country. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life, and that democracy can take many sphere of life, or फिर can take many forms. It is an important line here. There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation or an equal basic is accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. We shall read more about that in the chapter 3. और स्टूडेंट्स अभी तक के पूरे चीज़ों में आपको यही क्लियर हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री में को मान सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे उस मैटर को, जो मुद्दे को उठाएंगे, उन्हीं को वहाँ पे अधिकार होता है, उसी बल पर हमें कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज रिप्रेजेंटेटिव टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ देयर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। They have to also see that how many people are suffering there. They have to also make a marking of those people who are suffering, who are living under the poverty, who are suffering due to health and education, and they have to provide them all the facility according to the government's policy. This is also the government's policies and decision. All the people can sit together and take decision directly. डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वैल्यू होता है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठेंगे और सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी एक प्रावधान होता है। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। कैन यू थिंक हियर दैट इट इज़ द कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।